Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. Today's our topic is physical properties of benzene. As we have studied in the previous lecture about the benzene, their chemical, uh, their molecular formula, and its nomenclature, and some of the special names we have studied in the previous lecture. In today's lecture, we will start with the physical properties of the benzene. That what are the physical properties of the benzene? The first one is at room temperature and pressure, it is a colorless liquid. It have no distinct color. So at room temperature and pressure, it is colorless liquid. While the second property is that it has peculiar smell, which is unpleasant. No one can, everyone is irritated with this smell. So it has a peculiar smell. The next property is that it has a burning taste. Now, the specific gravity of the benzene is 0.8788 kilogram per liter. It is the unit of the specific gravity, and the specific gravity is used to find the density of the molecule. It is used to find the density of the molecule. So, the specific gravity of the benzene is 0.8788 kilogram per liter, while its melting point is 5.5 degrees centigrade. It melts at very low temperature. If we give the 5.5 degrees centigrade temperature, then it can melt, while its boiling point is 80.2 degrees centigrade. The next one is it is highly inflammable. Inflammable means which catch the fire easily. It can catch the fire easily, so it is highly inflammable. The next one is it is insoluble in water because the benzene is polar in nature. The benzene is non-polar in nature. The benzene is non-polar in nature, while the water is polar in nature. So, according to solubility rule, that like dissolve like rule, the water is polar while the benzene is non-polar. So that is why the benzene cannot dissolve in the water. So how can we dissolve it? We can dissolve it in ether, alcohols and petrol, because these are non-polar in nature. So the benzene is dissolved in the non-polar solvent like alcohols, ether, except this one, the petrol, and we have some more example like CCl4, etc. So these are the physical properties of the benzene. Let me repeat it again. At room temperature and pressure, it is colorless liquid. It has a peculiar smell. Its taste is burning. It is burning taste. Its specific gravity is 0.87788 kilogram per liter, while its melting point is 5.5 degrees centigrade. Its boiling point is 80.2 degrees centigrade. It is highly inflammable, which catch the fire easily. The next one is it is insoluble in water, while these are soluble in ether, alcohols and petrols, because these are non-polar solvent. So that is why the benzene can dissolve in this non-polar solvent. Alright, now let me start the structure of benzene. That how we can draw the structure of benzene. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास जो कार्बन एटम है हर एक बेंजीन रिंग का, सबसे पहले आप लोग इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपके पास है C6H6, इसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं कि आपके पास जो इसमें हर एक कार्बन है, तो ईच कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, इसमें जो आपके पास p ऑर्बिटल है, तो उसमें आपके पास हाइब्रिड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। क्योंकि अगर हम बेंजीन में देख लें तो इसमें आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन इट मींस दैट वी हैव वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच इज pz, while the remaining s and p2, it means that p has 3 degenerate orbitals, px, py and pz.
In these three degenerate orbitals we have two hybrid orbitals while the one is unhybrid. तो इसमें आपके पास, आप ये ज़हन में रख लें कि आपके पास जो तो इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और बाकी जो तो आपके पास इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो उनका काम क्या होता है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। हर एक कार्बन जो आपके पास यहाँ पे जो बॉन्डिंग करता है तो इसमें ईच कार्बन is bonded with hydrogen atom and it is bonded with other carbon atom. हर एक कार्बन जो है तो ये एक कार्बन के साथ और एक जो तो हाइड्रोजन के साथ each carbon is linked with one carbon and one hydrogen atom. तो इसमें जो आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसमें प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस बेस पे जो तो आपके पास इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास जो तो इसमें बन सकता है। जिस तरह अगर आप लोग देख लें तो हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। इसमें ये आपके पास ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इसका। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अगर हम देख लें तो हर एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, फॉर एग्जांपल ईच कार्बन रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम। तो हर एक कार्बन के साथ और एक कार्बन यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ लिंक है और यही कार्बन आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ भी लिंक है। मींस कि इसमें आपके पास लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है एंड बिकॉज ऑफ दिस लीनियर ओवरलैपिंग इट फॉर्म्स द सिग्मा बॉन्ड। जिस तरह यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ भी आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और साथ में कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड जो ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान ये 6 आपके पास जो तो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स या आपके पास इसमें एग्जिस्ट करते हैं और फिर ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर हम देख लें तो ये भी आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स जो तो ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 6 हाइड्रोजन एटम्स और इसमें जो तो आपके पास यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं आपके पास तो 6 जो तो कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं और 6 जो तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान आपके पास इसमें सिग्मा बॉन्ड आते हैं। सेकंड इसमें हम ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है आपके पास एंड ड्यू टू दिस प्लेनर ज्योमेट्री इट हैज अ डिस्टिंक्ट एंगल व्हिच इज 120 एंगल। तो ये 120 एंगल जो है आपके पास इसमें ये एग्जिस्ट करता है। इसके बाद फिर हम जो पाई बॉन्ड इसमें बनता है क्योंकि इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी है और जितने इसमें अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो उतनी ही जो तो आपके पास इसमें ये पाई बॉन्ड्स जो तो ये बन सकते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को कंसीडर कर लें तो यहाँ पे आपके पास ईच कार्बन एटम हैज p orbital which is unhybrid। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो तो यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। अच्छा, सेकंड इसमें आपके पास जो तो लेटरल ओवरलैपिंग जो तो इसमें होती है, लेटरल ओवरलैपिंग। और लेटरल का मतलब क्या है आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग जो तो आपके पास इसमें आपके पास होगी। जिस तरह यहाँ पे इसका जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है इट इज ओवरलैपिंग विद दिस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दिस इज ये जो तो आपके पास ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल these are overlapping with each other but these are perpendicular to the सिग्मा बॉन्ड। जो आपके पास सिग्मा प्लेन है आपके पास तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली आपके पास यदि ये ओवरलैपिंग करेंगे। सेम यहाँ पे भी आपके पास ये परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग जो तो इनमें ये हो जाएगी। तो आपके पास इसमें जब भी हम ये आपके पास जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है तो वो हम इस तरह से ड्रा करते हैं कि इसमें आपके पास ये डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड इसकी अल्टरनेशन जो तो आपके पास होती है। सेकंड इसमें जो पाई बॉन्ड होते हैं तो ये पाई बॉन्ड जो तो ये अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड जो तो ये आपके पास आते हैं। मतलब अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो आपके पास यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है आपके पास बिटवीन द कार्बन एटम तो यहाँ पे आपके पास ये जो सेकंड जो पाई बॉन्ड आपके पास बनेगा तो ये अबव और बिलो
इस तरह से जो है तो आपके पास इसकी ओवरलैपिंग जो है तो आपके पास होती है। और इसमें अगर हम देख लें तो ईच कार्बन हैज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन दिस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हर एक कार्बन के साथ जो है तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये जरूर होगा। अगर हम इस कार्बन को देख लें तो इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड बने हुए, भले ही यहाँ पे आपके पास ये सिंगल बॉन्ड बना हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड है। सेम इसी तरह अगर हम इस कार्बन को देख लें, जैसे यहाँ पे सिंगल किए हुए लेकिन इसके साथ जो है इसने डबल किए हुए, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास एक दूसरी टर्मिनोलॉजी इसमें आ जाती है, डीलोकलाइजेशन। तो इस बेंजीन रिंग में आपके पास जो तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ये भी इसमें हो रही है। और डीलोकलाइजेशन हम कहते हैं इसे हैं कि आपके पास एक एटम सिर्फ एक ही एटम के साथ, एक एटम सिर्फ एक ही एटम के साथ लिंक नहीं होता, बल्कि इनकी न्यूक्लियाई जो होती है तो इट इज लिंक विद टू एटम्स। अगर हम यहाँ पे देख लें तो इस कार्बन को लेट सपोज हम यहाँ पे इसे कंसीडर कर लें, तो दिस कार्बन न्यूक्लियाई इज लिंक विद दिस कार्बन न्यूक्लियाई एंड दिस कार्बन न्यूक्लियाई। तो एक ही कार्बन की न्यूक्लियाई आपके पास यहाँ पे भी लिंक है और यहाँ पे भी आपके पास ये लिंक है। तो यहाँ पे जो है ये पाई बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे जो है आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फिर सेम यहाँ पे इस कार्बन को अगर हम देख लें तो यहाँ पे जो है ये पाई बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो इट्स मीन दैट each carbon of this hexagonal structure of this benzene ring is linked with the two nuclei. The one carbon nuclei is linked with two carbon nuclei, so that is why it has the delocalization, and because of this delocalization it is a stable compound। ये जो था आपके पास एक stable pi इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है तो इनका ये स्टेबल होता है। तो इसलिए फिर आप लोग इसमें आगे देख भी लोगे कि इसमें जो हम एडिशन रिएक्शन करते हैं तो दीज आर नॉट फिजिबल फॉर द बेंजीन रिंग, क्योंकि वहां पे आपके पास इनकी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम इस पे एडिशन रिएक्शन करना भी चाहते हैं तो देन वी हैव टू इंक्रीज द temperature, we have to use the catalyst, we have to increase the pressure by some other external sources, we have to add some other compounds। लेकिन एक्चुअल क्या होता है आपके पास इसमें कुछ एडिशन वगैरह ये नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये सीख लिया है कि यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तो ये फर्स्ट केस में ये सिग्मा बॉन्डेड होते हैं। जो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे मेक द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वहाँ पे आपके पास कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। फिर सेकंड जो तो हम यहाँ पे ये देखते हैं जो आपके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है ऑफ ईच कार्बन एटम। तो हर एक कार्बन एटम का जो आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो दीज आर लेटरली ओवरलैपिंग विद ईच अदर। तो ये आपके पास लेटरली ओवरलैपिंग करता है साइड वाइज, और यहाँ पे आपके पास जो तो इसमें क्या बनता है एक पाई बॉन्ड, इसमें ये बन जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड व्हिच इज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, इसे आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। इनका जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, तो ये इनकी ओवरलैपिंग जो तो आपके पास ये इस टाइप की जो तो होती है, और यहाँ पे बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी आपके पास होती है। तो मींस कि इनका जो सिग्मा बॉन्ड्स है तो दीज आर सैंडविच इन बिटवीन द टू पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो इनके बिल्कुल बिटवीन आपके पास जो तो ये सिग्मा बॉन्ड्स ये सैंडविच है। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे जो तो आपके पास इसकी स्टेबिलिटी अगर है तो ये आपके पास दो रीजन है इसके। एक जो तो आपके पास इसमें जो पाई बॉन्डिंग है above and below the plane of the sigma bond, एक रीजन ये है। सेकंड रीजन आपके पास ये आ जाता है because of the delocalization which is referred to resonance effect, जो आपके पास resonance effect के साथ रेफर किया जा सकता है, जिसमें आपके पास अगर देख लिया जाए जिस तरह हमने पहले भी देखा था तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ये जो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है और ये यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके पास बनता है तो वो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड जो तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो ये देखिए इनके पाई बॉन्डिंग जो है आपके पास ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास चेंज होकर आपके पास सेकंड जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो आपके पास बन जाता है। सेम इसी तरह अगर हम शिफ्टिंग ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन दिस टू कार्बन हैविंग द सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे इसमें ये शिफ्टिंग करने और इसको यहाँ पे देन वी विल ऑब्टेन द ओरिजिनल वन जो आपके पास फर्स्ट पोजीशन में जो हमारे पास था। तो यही जो आपके पास स्ट्रक्चर है तो ये हम दोबारा यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट है,
delocalization है, and because of this resonance and the delocalization, the benzene ring is stable as compared to other conjugated system. फिर इसमें आपके पास जो तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास इसमें आ जाते हैं कि किस तरह से हम इसमें ये स्ट्रक्चर जो ये ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो क्लियर है इसमें ये एक आपके पास इसका जो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से भी आप बेंजीन को ड्रा कर सकते हैं। And each carbon has one hydrogen atom which is linearly overlapping with each other and forms a sigma bond. So between these two carbon it is sigma bond. इसमें भी आपके पास sigma bond है, and between this carbon and hydrogen it also exists the sigma bond. So इसमें जो कार्बन रिंग है आपके पास, तो इसमें अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 इसमें बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स तो ये 1 2 3 4 5 और 6 आपके पास बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स हैं। फिर यहाँ पे जो आपके पास 5 बॉन्ड्स हैं, तो वो इस तरह से आप इसमें कंजुगेशन जो है तो इस बेस पे ले आए, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल फिर सिंगल, फिर यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ये आ सकते हैं। या आप लोग जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपके पास आ गया है। फिर यहाँ पे आपने ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस तरह भी आप लोग इसका स्ट्रक्चर ये ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम इसमें इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। यही हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा, और इनके बिटवीन आप जो है इस तरह से एक सर्कल जो है ये ड्रा कर लेते हैं। ये सर्कल क्यों ड्रा करते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये पाई बॉन्डिंग जो होती है आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाले, तो ये पाई बॉन्ड्स इनकी जो तो आपके पास ये शिफ्टिंग होती है, रेजोनेंस इफेक्ट जो तो इसमें होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस इफेक्ट वी कैन ड्रा this pi bonds instead of this circle। तो ये जो तो आपके पास जो तो ये इस सर्कल फॉर्म में भी जो तो आप इसे ड्रा कर सकते हैं। ये जो सर्कुलर जो आपके पास एक बेंजीन है जिसमें हम मिडल में बिल्कुल एक सर्कल से डाल देते हैं, तो ये जो तो आपके पास एक केमिस्ट था सर रॉबर्ट रॉबिन्सन, सर रॉबर्ट रॉबिन्सन, इन्होंने जो तो ये स्ट्रक्चर जो तो इन्होंने पेश किया था 1925 में, कि इस तरह से भी आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर ये ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था आप लोगों के पास ये बेंजीन के हवाले से कि इनका स्ट्रक्चर जो तो हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, और हर एक कार्बन जो तो दूसरे कार्बन के साथ किस तरह से लिंक होता है। तो इसमें आप लोगों ने देख लिया था कि ईच कार्बन इज लिंक विद अदर कार्बन एटम हैविंग सिग्मा बॉन्ड। फिर इसमें हर एक कार्बन जो तो दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो तो ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसमें हमने देख लिया था कि 6 जो तो आपके पास इसमें बिटवीन कार्बन कार्बन ये जो तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड से, और 6 जो तो आपके पास बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन वो सिग्मा बॉन्ड थे। उसके बाद जो तो पाई बॉन्ड हमने देखा कि ईच कार्बन हैज p orbital which is laterally overlapping with each other, and because of this lateral overlapping it forms the pi bond। और उस पाई बॉन्ड में हमने ये भी देखा कि आपके पास जो पाई बॉन्डिंग है तो इट इज above and below the plane of the sigma bond, and because of this above and below the plane of the sigma bond it is stable because of the pi electronic system। and the second one is each carbon is delocalized, हर एक कार्बन जो तो आपके पास इसमें delocalization जो तो इसमें आपके पास हो सकती है, and because of this delocalization we can obtain the stable one compound of benzene। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह we will start the next one lecture about the resonance energy and stabilization of benzene। इंशाल्लाह in next lecture we will discuss it। अल्लाह हाफ़िज़।